Hello students, today we will discuss the topic solid state lasers. So what is solid state laser? Solid state laser consists of a crystal of glass-like material doped with a small concentration of a lasing ion such as chromium in case of ruby or neodymium in case of the YAG. तो सॉलिड स्टेट लेज़र जो है वो ग्लास लाइक मटेरियल जो कि डोप्ड होंगे स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ लेजिंग आयन, ठीक है। लेजिंग आयन के स्मॉल कंसंट्रेशन से जो डोप्ड मटेरियल है, डोप्ड ग्लास लाइक मटेरियल है, उनको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट लेज़र। जैसे कि क्रोमियम, रूबी के केस में क्रोमियम एंड न्यूडियम इन केस ऑफ याग। So here in solid state lasers, active medium consists of a passive host crystal plus active ion. So active medium किस किस से मिलके बना है? एक तो passive host crystal से मिलकर के बना है एंड दूसरा active ion से मिलके बना है। जैसे कि for example ND YAG laser. तो ND YAG laser में this ND is the impurity added and this YAG is the crystal. Okay, so the passive host crystal is here that YAG crystal and the active ion is ND ion or neodymium ion. Okay, so the population inversion is created in the ND ion, neodymium ion, and this ion generates the photon of the laser light. So population inversion is created in the neodymium ion and this ion generates the photon of the laser light. So laser light के photon जो है ये ion generate करता है because the population inversion is created in this ion. Thus, in this way, three principal elements leading to gain in a solid state laser. So, there are three principal elements which leads to gain in a solid state laser, and these three principal elements are the host material, the activator or sensitizer ions, and the third is the optical pump source. So the host material is the material with its macroscopic mechanical, thermal and optical properties and its unique microscopic lattice properties. So the host material has the macroscopic, mechanical, thermal and optical properties and its unique microscopic lattice properties. Okay, so these host material must have these properties. Second is the activator or sensitizer ions. So these are the ions with their distinctive charged states and free ion electronic configuration. So these activator ions have the distinctive चार्ज स्टेट्स एंड फ्री आयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके जो है डिस्टिंक्टिव चार्ज स्टेट्स होते हैं और फ्री आयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ओके, द थर्ड वन इज द ऑप्टिकल पंप सोर्स with its particular geometry, spectral irradiance and temporal characteristics. So this optical pump source has the particular geometry होगी इस source की and स्पेक्ट्रल इरेडियंस होगी एंड टेम्पोरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ओके, सो होस्ट मटेरियल, सॉलिड स्टेट होस्ट मटेरियल के बारे में हम देख लेते हैं पहले। सो व्हाट आर दी होस्ट मटेरियल? सो सॉलिड स्टेट होस्ट मटेरियल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द टू parts. First is the crystalline solids and the other is the glasses. So we must have properties of the host material is what? Good optical and mechanical and thermal properties. So the host material must have the good optical, mechanical and thermal properties. किसी भी host material की पास अच्छी optical, mechanical और thermal properties होनी चाहिए, ठीक है, for lasing. And desirable properties हैं कि hardness, chemical inertness, absence of internal strain, refractive index variations, resistance to radiation induced color centers and ease of fabrication. तो जो है इनकी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फर्स्ट है इसका हार्डनेस होना चाहिए, सेकंड है केमिकल इनर्टनेस होनी चाहिए, अक्रियता, ओके, एंड एब्सेंस ऑफ इंटरनल स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशंस होने चाहिए
एंड रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये रेजिस्ट करने चाहिए रेडिएशन इंड्यूस्ड कलर सेंटर्स को, एंड फैब्रिकेशन के लिए ये इजी होने चाहिए। ओके, फैब्रिकेट करने के लिए इजी होने चाहिए। सो क्राइटेरिया फॉर अ क्रिस्टल सुटेबल फॉर अ होस्ट मटेरियल। तो होस्ट मटेरियल, किसी भी होस्ट मटेरियल को बनने के लिए, कोई मटेरियल है उसको होस्ट मटेरियल कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज द क्रिस्टल मस्ट possesses favorable optical properties. So crystal must possess favorable optical properties, and the second is the crystal must possess mechanical and thermal properties that will permit high average power operation. Okay, so the crystal must possess mechanical and thermal properties, and that will permit the high average power operations. Most important parameters are the thermal conductivity, hardness, and fracture strength. So these are the most important properties for the uh, crystal that must possess. Third property is the crystal must have lattice sites that can accept the dopant ions and have local crystal field of symmetry. So crystal के पास जो है लैटिस साइड्स होने चाहिए ताकि जो है वो डोपेंट आयन को एक्सेप्ट कर सके, एंड लोकल क्रिस्ट फील्ड ऑफ सिमेट्री भी उसके पास होनी चाहिए। एंड फोर्थ इज इट मस्ट बी पॉसिबल टू स्केल द ग्रोथ ऑफ द इम्प्योरिटी डोप्ड क्रिस्टल। सो इम्प्योरिटी डोप्ड क्रिस्टल की ग्रोथ को स्केल करना भी इसमें पॉसिबल होना चाहिए। ओके next is the glasses which is used in the uh, solid state lasers. So glasses form an important class of host material. So glass is one of the important class of host material for some of the rare earths, particularly Nd3 plus neodymium ion. Okay, so glasses form an important class of host material. So why glass? Why not crystalline materials? Why we use the glass but not the crystalline materials? So the answer is here that first is that outstanding practical advantage of glass material is the tremendous size capability for high energy applications. So outstanding practical advantage. So glass has the outstanding practical advantage and has the tremendous size capability for high energy applications. तो high energy applications के लिए इसकी जो size capability है वो tremendous है, and जो इसकी practical advantage है वो भी outstanding है. So that's why the glass is used in place of crystalline material. Second is that the optical quality is excellent. So the glass has the optical quality, and the optical quality is excellent, and as glass is easily fabricated and takes a good optical finish, and it is easy to fabricate and has a good optical finish. So that's why this is used. Third is that laser ions placed in glass generally show a larger fluorescent line width. So laser ion placed in the glass, तो ग्लास में जो लेजर आयन होंगे वो एक लार्जर फ्लोरोसेंट लाइन विड्थ को प्रोड्यूस करेंगे, शो करेंगे देन इन दी क्रिस्टल्स के कंपैरिजन में. ओके, एंड नेक्स्ट इज द ग्लास हैज़ अ मच लोअर थर्मल कंडक्टिविटी देन मोस्ट क्रिस्टलाइन होस्ट. तो ग्लास की जो है थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ द क्रिस्टलाइन होस्ट. So for bulk solid state lasers, glass doped with Nd3 plus and Er3 plus is important, and in fiber oscillators and amplifiers, Er3 plus and Yb3 plus doped glass provides the active medium. So bulk solid lasers में glass doped जो न्यूडियम आयन है एंड Er आयन है ये important है, और जो फाइबर ऑसिलेटर्स और एम्पलीफायर्स में जो है ये Er3 प्लस एंड Yb3 प्लस डोप ग्लास जो है वो एक्टिव मीडियम को प्रोवाइड करते हैं.
Now the different types of the lasers. So there are different type of lasers. First is the solid state lasers. Second, the semiconductor laser. Third, the atomic and ionic gas laser, molecular gas lasers, chemical lasers, and the dye lasers. तो सॉलिड स्टेट लेजर के एग्जांपल क्या क्या हैं? रूबी लेजर, एनडी याग लेजर, टीआई सफायर लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर is the another example of the different type of laser. And atomic and ionic gas laser के example क्या क्या हैं? हीलियम नियॉन लेजर, आर्गन लेजर, कॉपर वेपर लेजर, मॉलिक्यूलर गैस लेजर के एग्जाम्पल हैं CO2 लेजर एंड N2 लेजर. Now we will discuss the ruby laser as in your syllabus, the ruby laser. So ruby laser is first laser invented. It is fabricated by Mayman in 1960. Okay, so ruby laser is the first laser invented, and it is fabricated by Mayman in 1960. This laser has the ornamental use because ruby has the red color. Okay, and this red color is due to the impurity of what? Impurity of the chromium ions in an alumina crystal lattice. So without chromium impurity, the alumina crystal is colorless. So जो रूबी लेजर होता है, रूबी जो होता है वो क्या होता है? रेड कलर का होता है. रेड कलर किसके कारण होता है? इसमें इम्प्योरिटी के कारण. किसकी इम्प्योरिटी? इम्प्योरिटी ऑफ क्रोमियम आयंस इन द एल्यूमिना क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, और अगर क्रोमियम इम्प्योरिटी को हम ऐड ना करें तो एल्यूमिना क्रिस्टल जो होगा वो कैसा होगा? कलरलेस होगा, ये वाइटिश होगा. ओके, सो इसमें जो रूबी में जो कंसंट्रेशन है Cr2O3 का, क्रोमियम ऑक्साइड का, वो कितना है? 0.05%. सो रूबी का, इसमें रूबी में जो है 0.05% है क्रोमियम ऑक्साइड. ठीक है, इस एल्यूमिना लैटिस में जो क्रोमियम ऑक्साइड का जो इसमें परसेंटेज है वो है 0.05%. सो बहुत बहुत कम है, बट इस इतने कम क्रोमियम आयन की वजह से ही इस रूबी का जो कलर है वो क्या है? रेड है. ठीक है, सो दिस रूबी was used as the active medium to construct the first ever laser. So this laser, that is the ruby laser, was the laser first invented, and the ruby was used as the active medium to construct this laser. The only small amount of, that is chromium ions, provide the electronic states that can give rise to population inversion and hence lasing. So आप देख सकते हो उसमें क्रोमियम ऑक्साइड का कितना? 0.05% ही रूबी लेजर में यूज होता है. तो इतना कम अमाउंट, ये तो क्रोमियम ऑक्साइड का है, तो क्रोमियम आयंस का और भी कम जो अमाउंट होगा वो क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स प्रोवाइड करता है, जो कि पॉपुलेशन इन्वर्जन को क्रिएट कर सकता है. और पॉपुलेशन इन्वर्जन जब एक बार क्रिएट हो गया तो लेजिंग एक्शन भी होता है. ठीक है, तो लेजिंग एक्शन के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत बहुत ज़रूरी है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करने के लिए इसमें क्रोमियम आयन का यूज़ किया जाता है. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ chromium provides the electronic states that can give rise to the population inversion. So this chromium ions, that is Cr3 plus, are excited by the broadband emission from a flash lamp coiled around it or placed alongside it within an elliptical reflector. So ये जो क्रोमियम आयन है वो
एक्साइटेड क्रोमियम आयंस आर एक्साइटेड, इनको एक्साइट किया जाता है बाय द ब्रॉडबैंड एमिशन फ्रॉम अ फ्लैश लैम्प। तो फ्लैश लैम्प से ब्रॉडबैंड एमिशन के द्वारा ये क्रोमियम आयंस को एक्साइट किया जाता है। और ये जो फ्लैश लैम्प है वो इस तरीके से कॉइल्ड होता है इस रूबी, ये जो क्रोमियम आयंस हो रहे हैं, ठीक है, एक्साइटेड हो रहे हैं, और ये जो है रूबी रॉड होगी आपकी। तो इसमें इस तरीके से ये जो है स्पाइरल 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 कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। So it is placed alongside it within an elliptical reflector. So energy level diagram of the ruby laser is this. So this is the energy level diagram of the ruby laser. Okay. So here we can see that this is the E1 level, this is the E2 energy level, and this is the E3 energy level. So this E3 energy level is the broadband energy level. So this E3 level, okay. So we can say that it is a pseudo 3 level laser system. तो pseudo 3 level, वैसे तो रूबी लेजर जो है वो 3 लेवल लेजर सिस्टम है, बट इसको हम pseudo 3 लेवल लेजर सिस्टम भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है ये जो E3 लेवल है वो काफ़ी ब्रॉड लेवल है। ये भी हमें ऐसे लगता है कि दो एनर्जी लेवल हैं, ठीक है, बट इसको ही दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक यहाँ 4F1 एंड दिस इज 4F2। दिस इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक notation, okay, so this is 2E and this is, sorry, these are not the spectroscopic notations, these are the general notations, and this is the 4F1, this is the 4F2, this is the 2E, this is 4A2, okay. So 4F1 and 4F2 states decay very rapidly to the state 2E. 4F1 and 4F2 states 4F1 एंड 4F2 स्टेट्स जो हैं वो बहुत रैपिड डीके होता है इनका, ये ठीक है। 4F1 एंड 4F2 में जो एटम्स हैं इनका रैपिड डीके होता है एंड टू दी 2E state, okay. And initially the atoms are at either 4F1 और 4F2. तो सपोज जो एटम्स हैं वो 4F1 एंड 4F2 में है, इस लेवल में है, ठीक है, and both of them will decay rapidly to the state 2E, and 2E is the metastable state. So this 2E is the metastable state, this 2E, this 2E is the metastable state, okay. So this 2E is the metastable state, and atoms are decaying very fast from the 4F1 and from 4F2 to this 2E energy level, okay, and this 2E is the metastable state. So population inversion is created. Once the population inversion is created, the spontaneous emission can trigger the stimulated emission, and stimulated emission can come out from the laser cavity as a burst, okay. So एक बार जब spontaneous emission हो जाता है तो spontaneous emission जो है वो क्या करेगा, stimulated emission को ट्रिगर करेगा, और एक बार जब stimulated emission ट्रिगर हो जाएगा तो आउटपुट में हम लेज़र जो जाइंट लेज़र पल्स है उसको हम गेन कर सकते हैं, ओके। So this is the cavity, and this is the high reflector mirror, and this mirror is the output coupler, okay. And this
this axis decides the laser cavity axis. So this line decides the laser cavity axis. Okay. So the active medium which is emitting photons, this is my active medium. These are the mirrors, reflector and output coupler, and this is, suppose this is the active medium. Okay, and this is the flashlight. So ये जो फ्लैश लाइट है यहाँ पर, ठीक है, ये फ्लैश लाइट जो है इसका काम क्या है? पंप करना फोटॉन्स को, एटम्स को पंप करना फ्रॉम दी ग्राउंड स्टेट टू दी हायर स्टेट, ठीक है। बट यहाँ पर जो ये एक्टिव मीडियम, द फ्लैश लाइट इज गिविंग लाइट इन एवरी अदर डायरेक्शन। यहाँ पर जो ये फ्लैश लाइट है वो केवल, यहाँ पर देखेंगे आप, वो केवल यहाँ इस तरीके से इस एक्टिव मीडियम को फोटोन ना दे करके जो लाइट है वो अदर डायरेक्शंस में भी फैल रही है, ठीक है। सो लाइट इज गिविंग लाइट इन दिस फ्लैश लाइट इज गिविंग लाइट इन एवरी अदर डायरेक्शन। ओके, सो होगा क्या? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट विल बी लॉस्ट। तो इस तरीके से जो मैक्सिमम अमाउंट होगी लाइट की वो क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी, एंड दे विल नॉट रिलीज द एक्टिव मीडियम if this is the only configuration that we have. Okay, so ये जो है क्या है, इसमें ज़्यादातर जो फोटॉन्स हैं उनका लॉस हो जाएगा। so how this loss is arrest and how to arrest this loss? so if we have, यानी कि इस लॉस को हम कम कैसे कर सकते हैं? so हम कोई एक ऐसी मैकेनिज्म ढूंढते हैं। if we have a mechanism by which if there is a reflector and this light can be reflected back into the system towards the active medium, then we can bring down the loss to a great extent. तो अगर हम इस लॉस को कैसे हम कम कर सकते हैं? अगर हमारे पास ऐसी मैकेनिज्म हो जिससे कि रिफ्लेक्टर लगा हो, जिसमें एक रिफ्लेक्टर हो और ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाए सिस्टम की तरफ, ठीक है, टूवर्ड्स द एक्टिव मीडियम। तो हम इस जो लॉस हो रहा है जो, इसको हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, ठीक है। सो तो हम किस तरीके से वो रिफ्लेक्टर का यूज़ करेंगे? तो हम रूबी रॉड एंड फ्लैश लैम्प, ये जैसे इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में रूबी रॉड एंड दी फ्लैश लैम्प, बोथ ऑफ देम आर पुट इनसाइड अ रिफ्लेक्टर चैम्बर। सो दीज आर पुट इनसाइड अ रिफ्लेक्टर चैम्बर। ये तो ये यहाँ जो है, ये वाली क्या है? ये रूबी रॉड है, ये देख रहे हैं आप, ये वाली, दिस इज द रूबी रॉड एंड दिस स्पाइरल, ये जो स्पाइरल आकृति में है, ये ऐसा ऐसा, दिस इज आवर फ्लैश लैम्प, ठीक है। तो ये स्पाइरल आकृति में, अब पहले जैसे हमारा फ्लैश लैम्प था ऐसा, ये एक्टिव मीडियम था, यानी कि जैसे हम रूबी रॉड ले रहे हैं तो वो एक्टिव मीडियम हो गया, और ये हमारा फ्लैश लैम्प हो गया। तो इसकी सीधे से लाइट इसमें पड़ रही थी, बट और लाइट जो है वो इधर उधर बिखर रही थी, जिससे जो है फोटॉन्स का लॉस होना था, ठीक है। बट यहाँ पर अब हमने क्या कर दिया? रूबी रॉड को इस तरीके से ले लिया और जो फ्लैश लैम्प है उसको हमने स्पाइरल वे में ले लिया, यानी कि स्पाइरली ये इसके अराउंड है रूबी रॉड के, ठीक है, इसके अराउंड है, यानी कि इसमें लपेटे, जैसे ये लपेटा हुआ हो ये फ्लैश लैम्प इस रूबी रॉड में, ठीक है। सो द हॉलो ट्यूब, ये जो रिफ्लेक्टर है, ये जो रिफ्लेक्टर है, इनसाइड रिफ्लेक्शन चैम्बर लिखा हुआ है हमने, ठीक है, रिफ्लेक्टर चैम्बर। और ये जो फ्लैश लैम्प है, दिस इज रिफ्लेक्टर चैम्बर एंड दिस इज व्हाट? हॉलो ट्यूब whose inner sides are all reflectors। तो ये ऐसी हॉलो ट्यूब्स हैं जिनकी की इनर साइड्स, ये इनर साइड्स मतलब ये रूबी रॉड है और ये जो एक हॉलो ट्यूब दिखा रहे हैं हम इसमें ऐसा,
तो इनकी जो इनर साइड है यहाँ, ये वाली इनर साइड है, जो ये इनर साइड, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको रिफ्लेक्टर बना दिया जाए। कैसे? बाय पॉलिशिंग द इनर पार्ट, गोल्ड कोटेड कर दिया जाए अगर इसको, तो क्या होगा, ये एक रिफ्लेक्टर का काम करेगी। ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट रिफ्लेक्टर लाइट विल रीच एक्टिव मीडियम। तो ये जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्टर लाइट जो है वो एक्टिव मीडियम यानी कि जो रूबी रॉड है इसको, इस तक पहुंचे। ठीक है, सो अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री हैज़ टू बी टेकन दी क्रॉस टेकन। तो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री लेनी पड़ेगी इसके लिए। उस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को लेने के लिए हम ये समझते हैं पहले, this is the reflective cavity and this is the ruby rod. Okay, and this is the flash lamp. This and this, these are the foci of the elliptical surface. These are the foci. Okay, सो हम ऐसी ज्योमेट्री ले लें कि ये जो रूबी रॉड है और जो ये फ्लैश लैम्प है, ये क्या हो, ये फोकाई का काम करे किसी इलिप्स में। ठीक है, तो ये इस तरीके से ले सकते हैं हम। ये हमारा एक क्या है, ये क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें एक स्पेशल ज्योमेट्री की ज़रूरत होगी, पर्टिकुलर ज्योमेट्री की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो फ्लैश लैम्प हमने स्पाइरल वे में लिया है इस तरीके से रूबी रॉड के बाहर, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम इसके इनर साइड्स को रिफ्लेक्टर बना दें तो ज़रूरी नहीं है कि रूबी रॉड तक जो है जितनी भी जो लाइट है वो एक्टिव मीडियम यानी कि रूबी रॉड तक पहुंचे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ज्योमेट्री एज्यूम करनी पड़ेगी, ये ज्योमेट्री एक रखनी पड़ेगी। तो पर्टिकुलर ज्योमेट्री जो है उसमें क्या करते हैं हम कि रूबी रॉड और फ्लैश लैम्प को क्या मान लेते हैं, फोकाई मान लेते हैं एक इलिप्स का। तो अगर सपोज ये एक इलिप्स है, ठीक है, इलिप्स ये क्या है, ये जो हॉलो ट्यूब है, वो जो हॉलो ट्यूब देखिए आपने, ये वाली हॉलो ट्यूब, ये जो हॉलो ट्यूब है, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इस तरीके का एक फिगर बना रही है, ये यहाँ पर एक इस तरीके का फिगर बना रही है। तो इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन ले लूँ, इस हॉलो ट्यूब का मैं अगर क्रॉस सेक्शन ले लूँ तो मुझे एक इलिप्स मिलेगा। ठीक है, तो वो इलिप्स क्या होगा, ऐसा एक इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर जो होगा वो इस तरीके का होगा कुछ। वो ये होगा, ओके। So the cross section of the hollow reflector looks like an ellipse. ठीक है, तो जो क्रॉस सेक्शन है उस हॉलो रिफ्लेक्टर का वो एक इलिप्स की तरह होगा। ओके, सो द इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर का काम क्या होगा, इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर फोकसेस द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम वन फोकस इनटू द अदर फोकस ऑफ द इलिप्स। तो ये क्या करेगा कि इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर क्या करेगा, फोकस करेगा वन फोकस से निकलने वाली जो लाइट होगी उसको ये अदर फोकस पे क्या करेगा, अदर फोकस पे फोकस करेगा। ठीक है, तो एक फोकस से निकलने वाली लाइट को ये रिफ्लेक्टर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा अदर फोकस पे। इस तरीके से ये यहाँ से निकली, यहाँ से जो इस फोकस से निकलने वाली लाइट है, जैसे इस फोकस से निकलने वाली लाइट इस डायरेक्शन में है, तो ये दूसरे फोकस पे इसको क्या कर देगा, फोकस कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से जितनी भी लाइट एक फोकस से निकलने वाली होगी, इमर्जिंग लाइट जो होगी एक फोकस से, वो दूसरे फोकस पे क्या कर देगा, इनको फोकस कर देगा। ओके, सो दस लीडिंग टू एन एफिशिएंट फोकसिंग ऑफ पंप लाइट ऑन द लेजर रॉड। ओके, सो इस तरीके से ये क्या करता है, एक एफिशिएंट फोकसिंग पंप लाइट की जो होगी वो
लेजर रॉड को देगा। ठीक है, तो अब हम जो रूबी रॉड है या जो एक्टिव मीडियम है उस तक रिफ्लेक्टर की जो लाइट है वो पहुंचा सकते हैं आराम से एक्टिव मीडियम, इस एक्टिव मीडियम तक। ठीक है, यानी कि रूबी तक। ओके, तो किसे कैसे किया हमने, ये जो है अगर हम मान लें कि हॉलो जो ये हॉलो ट्यूब है जो उसका हम क्रॉस सेक्शन ले लें, क्रॉस सेक्शन, तो वो क्या है, एक एलिप्स है एंड एलिप्स के अंदर हमने दो फोकाई माने हुए हैं। वो फोकाई कौन कौन से हैं, रूबी रॉड एंड फ्लैश लैम्प। तो ये दोनों इस तरीके से काम करेंगे कि अगर लाइट इमर्ज होगी फ्लैश लैम्प से तो वो रूबी वाले फोकस से क्या होगी, टकराएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से लाइट इमर्ज होगी तो यहाँ फोकस हो जाएगी। और अगर ये फ्लैश लैम्प, जितनी भी लाइट इमर्ज हो रही है फ्लैश लैम्प से वो सब फोकस हो जा रही है इस फोकस पे, रूबी वाले फोकस पे। ये हुई, देखो ये यहाँ और ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ फोकस हो गई। अब ये यहाँ, ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ फोकस हो गई। अब ये यहाँ रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ फोकस हो गई और ये यहाँ रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ फोकस हो गई। ठीक है, सो इन दिस वे दिस लीड्स टू द एफिशिएंट फोकसिंग ऑफ पंप लाइट ऑन द लेज़र रॉड। तो पंप लाइट की जो है या जो फ्लैश पंप है उसकी जो इफेक्टिव फोकस को हम गेन कर सकते हैं लेज़र रॉड के ऊपर। ठीक है, so here ruby crystal and the flash lamp are kept into the foci of this ellipse. So the flash lamp gives light and light can go directly to the ruby laser. ठीक है, so in this way flash lamp gives light and light can go directly to the ruby laser. Okay, so this loss reduction is very necessary. ये loss reduction जो कि हम simple जब हम एक्टिव मीडियम ऐसे ले रहे थे कैविटी में, एक्टिव मीडियम, और ये एक्टिव मीडियम था हमारा। ठीक है, और यहाँ फ्लैश लैम्प ले लिया था हमने, तो यहाँ जो इसकी लाइट थी वो सारी डायरेक्शन में फैल रही थी। ठीक है, रूबी को भी, इस एक्टिव मीडियम को भी लाइट मिल रही थी बट और अदर डायरेक्शन में भी जो है ये लाइट बिखर रही थी। तो ये फोटॉन्स का लॉस था और फोटॉन्स का इतना ज़्यादा लॉस जो है वो बहुत सही नहीं है, क्योंकि हम जो है रूबी लेज़र में पॉपुलेशन इन्वर्जन जो क्रिएट करना होता है वो बहुत टफ होता है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करना बहुत हार्ड है, तो इसका मतलब पंपिंग भी बहुत हार्ड है। ठीक है, तो पंपिंग हम जब इतनी हार्ड तरीके से पंपिंग कर रहे हैं तो वो जो फ्लैश पंप है उससे जो लाइट इमर्ज, जो लाइट जो हमारी जो है एक्टिव मीडियम तक जो लाइट पहुंचनी चाहिए वो पूरी तरीके से पहुंचनी चाहिए, उसका उसमें फोटॉन्स का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अननेसेसरी लॉस को रोकने के लिए हम जो है कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री बना लेते हैं, पर्टिकुलर ज्योमेट्री जो है हम इस तरीके से चूज करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, सो दिस लॉस रिडक्शन इज वेरी नेसेसरी एंड बिकॉज क्रिएटिंग population inversion in a 3-level system is really hard and it needs very efficient pumping, so the light must not lose unnecessarily. Okay, so this kind of elliptical reflected geometry ensures that we have a highly efficient reflection system. So इस तरीके की जो electrical reflected geometry होती है ये इंश्योर करती है कि हमारे पास एक highly efficient reflection system है। okay? Okay, so the ruby laser is a 3-level laser and it still is one of the important practical lasers, and the absorption bands of ruby are very well matched with the emission spectra of practically available flash lamps. तो जबकि ये रूबी लेज़र जो है 3-level लेज़र है लेकिन फिर भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लेज़र है और इसमें जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं रूबी में
वो बहुत वेल मैच करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द प्रैक्टिकली अवेलेबल फ्लैश लैम्प के साथ, so that an efficient use of the pump can be made. So it also has a favorable combination of a long lifetime and a narrow line width. ठीक है, लॉन्ग लाइफ टाइम एंड नैरो लाइन विड्थ का भी एक फेवरेबल कॉम्बिनेशन होता है इसके पास. एंड रूबी लेजर इज ऑल्सो अट्रैक्टिव from an application point of view since its output lies in the visible region and where photographic emulsions and photodetectors are much more sensitive than they are in the infrared region. So ruby laser applications in pulsed holography. ठीक है, सो रूबी लेज़र की जो एप्लीकेशन है वो पल्स्ड होलोग्राफी में है बहुत. ओके, और इसके कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर पॉइंट आउट हम ये कर लेते हैं. जब इनिशियल फ्लैश लैम्प एक्साइटेशन टेक्स द क्रोमियम आयंस अप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट E1 यानी कि 4A2 टू वन ऑफ द 2E3 लेवल्स, यानी कि 2E3 लेवल्स यानी कि 4F1 और 4F2. तो इनमें से एक किसी भी लेवल के लिए. ठीक है, तो इनिशियल फ्लैश पंप जो है एक्साइटेशन, इनिशियल फ्लैश पंप का एक्साइटेशन जो होता है क्रोमियम आयंस को ग्राउंड स्टेट E1 से किसी भी एक 4F1 या 4F2 लेवल में ले जाता है एंड देन दे डीके रैपिडली टू E2 लेवल. और E2 लेवल में वो बहुत जल्दी जो है वो डीके हो जाते हैं, वहाँ पे लाइफ टाइम कम होता है उनका. एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन इज क्रिएटेड बिटवीन द E2 एंड E3 स्टेट्स. तो 10 E2 एंड E3 स्टेट्स के बीच में जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो क्रिएट कर सकते हैं. एंड दिस लीड टू द लेज़र एमिशन एट अ वेव लेंथ ऑफ 694.3 nm nanometer. Okay, and beam duration is 0.3 to 3 millisecond and the pulse delay is the several seconds to a minute. pulse delay जो है वो several seconds से लेकर के 1 मिनट तक है इसमें. okay, and the pulse energy is 200 joule. okay, so in this way the ruby laser, we have studied the ruby laser. तो रूबी लेज़र में जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं, आपके पास जैसे मैंने ये स्टार्टिंग में जो आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, तो सॉलिड स्टेट लेज़र्स क्या होते हैं, तो आप इनमें से जो है थोड़ा बहुत इसमें से लिख सकते हो कि सॉलिड स्टेट लेज़र जो है वो क्या है, सॉलिड स्टेट लेज़र किसे कहते हैं. उसमें जो है हमारा एक्टिव मीडियम क्या होता है, एक्टिव मीडियम किससे मिलके बना होता है, उसका एक एग्जांपल दे सकते हैं आप. ठीक है, एंड देन इसके बाद जो है आप होस्ट मटेरियल जो है कितने टाइप के होते हैं, बस थोड़ा बहुत इतना, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बताना. और फिर जो हम ग्लासेस यूज़ करते हैं वो ग्लासेस का बस थोड़ा सा इतना इंट्रोडक्शन देना ही काफ़ी होगा. ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आता है, वैसे तो आपको पढ़ना है ये पूरा, बट एग्ज़ाम में आता है अगर. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र्स जो हैं वो देखने हैं आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र्स. अभी हमने केवल जो है सॉलिड स्टेट लेज़र के बारे में, उसमें भी हमने केवल एक टॉपिक रूबी लेज़र पढ़ा है. अभी आपके इसमें है ND आर्क लेज़र, TI सफ़ायर लेज़र. ठीक है, तो शायद आपका ये वाला तो लेज़र जो TI टाइटेनियम सफ़ायर लेज़र है ये शायद है नहीं सिलेबस में, तो ND आर्क लेज़र आपके सिलेबस में है. तो कल जो है हम ND आर्क लेज़र ही पढ़ेंगे. ओके, उसके बाद आपका सेमीकंडक्टर लेज़र है और गैस लेज़र भी है आपके पास कुछ, तो हीलियम नियॉन आर्गन लेज़र है शायद, ये दोनों सिलेबस में है. ठीक है, ऐसे ही मॉलिक्यूलर गैस लेज़र एंड केमिकल एंड डाई लेज़र भी है आपके सिलेबस में. तो इनको हमें कवर करना है, तो आपकी जो ये सेकंड यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी. सो रूबी लेज़र के बारे में जो है इसमें कि रूबी लेज़र, रूबी का इसका जो कंस्ट्रक्शन क्या क्या है ये आपने देखना है. ठीक है, और जो इसमें इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. एनर्जी लेवल डायग्राम जो है इसमें ये लाइन को मत इज्यूम करना, ये लाइन ऐसे ही खींच गई थी गलती से, तो केवल ये डायग्राम है इसमें. ये फर्स्ट एनर्जी लेवल एक ये है, एक ये वाला है, एक ये और एक ये है. ठीक है, ये तो ब्रॉडबैंड एनर्जी लेवल है, इसलिए इसमें 2 लेवल्स
हम देख सकते हैं 4F1 एंड 4F2। ओके, बेसिकली E1, E2 एंड E3, ये 3 हैं एनर्जी लेवल्स, क्योंकि 3 लेवल लेजर सिस्टम है। ओके, एंड इसके बारे में कि इसमें ये जो है स्टेट्स जो हैं वो कैसे कैसे, कौन सी स्टेट से जो है एटम जो है डीके होते हैं किस स्टेट में, ये आपको थोड़ा सा लिखना है। इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ही है इसमें, थोड़ा लिखना है। उसके बाद इसकी जो ये कि हम जो है इसमें क्यों हम इसमें इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन लेते हैं हॉलो ट्यूब का, हॉलो जो फ्लैश पंप है जिसमें हम स्पाइरल वे में ले रहे हैं, स्पाइरल फिगर में ले रहे हैं, वो स्पाइरल फिगर में क्यों है और उसका जो है हम क्रॉस सेक्शन क्यों ले रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा उस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि हमें लॉस रिडक्शन करना है। तो लॉस रिडक्शन करना है, ठीक है। तो लॉस रिडक्शन करने के लिए हम कुछ इस तरीके का एक रिफ्लेक्टर चैम्बर ले लेते हैं, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टिंग जो हमारा क्रॉस सेक्शन है हॉलो ट्यूब का, वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है, किस तरीके से जो है वो वर्क करता है, किस तरीके से एज ए रिफ्लेक्टर काम करता है। उसमें ये हमने रूबी और जो फ्लैश लैम्प है, इन दोनों को क्या कर दिया हमने, फोकाई मान लिया इस इलिप्स का। तो क्यों माना उनको फोकाई, उस फोकाई के होने से क्या हो जाएगा, तो ये आपको इसमें पढ़ना है। इसमें मतलब जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं ये, तो रूबी लेज़र के बारे में आएगा तो आपको ये सब कुछ लिखना है, ठीक है। और लास्ट में इसकी जो कंक्लूजन है कि इसमें इनकी जो ये एमिशन ऑफ वेवलेंथ जो होती है वो कितनी कितनी वेवलेंथ की होती है इसमें एमिशन, और बीम ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, पल्स डिले जो है वो कितनी है, अब पल्स एनर्जी जो है वो कितनी है, ठीक है। तो इतना आपको जो है इसमें ढंग से पढ़ना है। बाकी रूबी लेज़र जहाँ से स्टार्ट है इसमें, वहाँ से आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो फिर कल हम पढ़ेंगे एनडी आर्क लेज़र।